हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी was ratified by Indian government in the year. Options are 1992, 1993, 1994, 1997. Correct answer is C, 1994. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD का पर्पस क्या है? Conservation of biological diversity, sustainable use of its component, fair and equitable sharing of benefits arising out of utilization of genetic resources. CBD entered into force, ये डेट आपको याद रखनी है। वैसे तो ईयर पूछता है पर डेट भी पूछ सकता है, 29 दिसंबर 1993। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था इसको, रेटिफाइड किया था? ईयर 1994। डेट हो सके तो याद रखिए, बाकी ईयर ही पूछता है वो, 1994। इंडिया enacted Biological Diversity Act in 2002 for giving effect to the provisions of the CBD. और CBD किसकी आउटकम है? अर्थ समिट 1992 की। अब न्यू अपडेट्स क्या है? इंडिया सबमिटेड इट्स 6th नेशनल रिपोर्ट, 12 national biodiversity targets and Aichi targets to the Convention on Biological Diversity. India is among the first 5 countries in the world, the first in Asia and the first among the biodiversity rich mega diverse countries to have submitted its report. The Aichi targets were adopted by the Convention on Biological Diversity in 2010 at its Nagoya conference. It is a short-term plan, provides a set of 20 ambitious yet achievable targets collectively known as Aichi targets. Aichi एक जगह है जापान के अंदर। अभी Aichi targets हैं क्या? एक्चुअली 20 टारगेट्स हैं। ब्रॉड कैटेगरी जो बना रखी वो ये है, स्ट्रेटेजिक गोल ए, इट एड्रेस द अंडरलाइनिंग कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर है कि क्या कॉसेस हैं, कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। अब स्ट्रेटेजिक गोल बी क्या है? रिड्यूस करना है डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। गोल सी क्या है? टू improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystem species and genetic diversity. गोल डी क्या है? enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem. और strategic goal ई क्या है? enhance implementation through participatory planning, knowledge management and capacity building. ये broad strategies हैं, इनके अंदर सब गोल्स हैं, टोटल मिला के 20 हैं। आप ये ब्रॉड गोल्स याद रखिए कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, रिडक्शन इन डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी, इंप्रूवमेंट द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय सेफगार्डिंग इकोसिस्टम स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, एनहांस द बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं और एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हो गया, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। Question number 32. Apart from carbon dioxide, which of the following gases also has a role in climate change? Options are methane, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, helium. Correct answer is option A, methane. ये क्वेश्चन हमने पहले किया है, फर्स्ट ही क्वेश्चन था जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर था। The Kyoto Protocol applies to the 6 greenhouse gases listed in Annex A. These 6 gases are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, and sulfur hexafluoride. Question number 33. At present, which country is the major emitter of carbon dioxide?
क्या पूछ रहा है? मेजर एमिटर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शंस आर यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस. करेक्ट आंसर इज चाइना. बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब ये कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट कंट्रीज का CO2 एमिशन में. तो ये फिगर में देखें तो चाइना 28%, यूनाइटेड स्टेट्स 14%, इंडिया 7%. फिर अलग अलग कंट्रीज दे रखी हैं यहाँ पे, तो आपको याद करना है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, देन रशियन फेडरेशन और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये याद कर लीजिएगा, चाइना 28%, यूनाइटेड स्टेट्स 14%, इंडिया 7%, रशियन फेडरेशन 5%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 22%. Question number 34. As per IPCC fourth assessment report, the average sea level during the period of 1961 to 2003 increased approximately at the rate of, options are 1.8 centimeter per year, 5.9 millimeter per year, 4.1 millimeter per year, 1.8 millimeter per year. So correct answer is D, 1.8 millimeter per year. IPCC means Intergovernmental Panel for Climate Change. इसकी फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2007 की और फिफ्थ जो है 2014 की और सिक्स्थ विल बी रिलीज्ड इन 2022. तो फोर्थ पे क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट प्रोबेबली फिफ्थ पे पूछेगा. तो फोर्थ की फाइंडिंग्स क्या है? सी लेवल रोज एट एन एवरेज रेट ऑफ अबाउट 1.8 millimeter per year during the years of 1961 to 2003. Second is the rise in sea level during the 1993 to 2003 was an average rate of 3.1 millimeter per year. तो अभी ये पूछा था 1961 to 2003. हो सकता है ये भी पूछ सकता है 1993 to 2003 की क्या एवरेज रेट थी, वो थी 3.1 मिलीमीटर पर ईयर. फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट क्या कहती है? द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज बाय द एंड ऑफ 21st century is likely to exceed 1.5 degree Celsius relative to the 1850 to 1900 period for most of the scenarios and is likely to exceed 2 degrees Celsius for many scenarios. Global mean sea level will continue to rise at a rate very likely to exceed the rate of the past 4 decades. अब ये याद कर लीजिएगा ऐसे कैसे स्टेटमेंट कि इतने exceed 1.5 relatively to this and 2 degrees Celsius for many scenarios. सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2022 के अंदर आएगी. व्हाट इज IPCC? The Intergovernmental Panel on Climate Change is the UN body for assessing the science related to climate change. It was established by the United Nations Environment Programme and the World Meteorological Organization in 1988 to provide policymakers with regular scientific assessment. तो मेन फंक्शन क्या है? साइंटिफिक असेसमेंट करके देता है ये. और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको 1988 के अंदर बनाया था. फुल फॉर्म आप याद रखिए इसकी. IPCC की स्पेशल रिपोर्ट 2018 जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 degree Celsius was approved by the IPCC in Incheon, Republic of Korea, limiting global warming to 1.5 degree Celsius compared to 2 degree Celsius. ये स्टेटमेंट आई थिंक इस बार के प्री में आएगी हिमाचल प्रदेश के. Limiting global warming to 1.5 degree Celsius compared to 2 degree Celsius.
लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस वुड रिक्वायर, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रैपिड एंड फार रीचिंग ट्रांसिशन इन लैंड, एनर्जी, इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज। फिर दूसरा है ग्लोबल नेट ह्यूमन कॉस्ट एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड need to fall by about 45% from 2010 levels to by 2030, reaching net zero around 2050. Means to say जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको हमें 45% रिड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम 2010 लेवल्स बाय 2030 तक, और नेट जीरो लाना पड़ेगा उसको बाय 2050 तक। और पहले क्या था, हम पहले टारगेट था 2 डिग्री सेल्सियस को लेते थे लिमिटिंग, अब हमने लिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस, आईपीसीसी की जो स्पेशल रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, इन इंडिया द फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शंस आर 18%, 29%, 21%, 31%. आंसर इज सी, 21%. इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, अब ये करंट का डाटा है, 2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट है। द टोटल फॉरेस्ट कवर, इसके फीचर्स क्या है मेन इंपॉर्टेंट, द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अबाउट 21.67% of the geographical area of the country. तो कितना है 21.67% of the geographical area of the country. फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय के अंदर। नेक्स्ट फीचर, टॉप 5 स्टेट्स टू हैव शोन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इंक्लूड, सबसे ज्यादा कर्नाटका के अंदर, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर, फिर केरला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का ये डाटा है कि इतना स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, ये याद रखना है आपको, 334 स्क्वायर किलोमीटर। द 2019 सर्वे हैज फाउंड एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 5,188 square kilometer in total forest and tree cover in the country. Mangrove cover in the country has increased by 54 square kilometer, that is 1.10%. Question number 36. Driving force for an ecosystem is, options are solar energy, vegetation, producers, D is biomass. Correct answer is option A, solar energy. A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. Question number 37. Which of the following has maximum biodiversity? Options are mangroves, coral, temperate region, tropical region. So correct answer is question number D. ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा था ये क्वेश्चन। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे पोल्स की तरफ, लैटिट्यूडनल इंक्रीज होगा तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन। ट्रॉपिक्स जो लैटिट्यूडनल रेंज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ harbors more species than temperate or polar areas. The largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on Earth. अब reason क्या है इसके? Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. Second क्या है? Tropical environment are less seasonal, relatively more constant and predictable.
थर्ड क्या है, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, thus in turn might contribute indirectly to greater diversity. तो रीजंस क्या क्या है, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, लेस सीजनल, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, ये तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल स्पीशीज डाइवर्सिटी विल डिक्रीज. क्वेश्चन नंबर 38. At present the primary energy source in the world is, options are hydropower, fossil fuels, nuclear power, solar power. So the correct answer is D, solar power. Question number 39. World Ozone Day is celebrated on, option are June 19, August 19, September 16, November 19. So answer C is correct, September 16. So these are the important international day related to environment point of view. तो ये सारे आपको याद रखने कि 2 Feb को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है और इस 2020 की जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी. 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट होता है, थीम थी फॉरेस्ट एंड एजुकेशन. अप्रैल 22 को अर्थ डे होता है, इस टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. मई 22 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. 2020 की थीम थी अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर. जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, थीम थी 2020 की बायोडाइवर्सिटी. जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली. 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, थीम थी 2019 की 32 इयर्स एंड हीलिंग. तो ये एक क्वेश्चन पक्का पूछता है, तो आप ये सारे याद कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 40. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर इको फ्रेंडली. अब इको फ्रेंडली कौन सी प्रैक्टिसेस है? ऑप्शंस आर ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउसेस. So correct answer is A, organic farming. Organic agriculture offers a means to substitute costlier agriculture inputs such as high yielding variety seeds, chemical fertilizers, pesticides, etc. with locally produced organic inputs. Organic farming promotes sustainable development. अब क्या है, मीन्स टू सब्सटीट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स किसके साथ? विद लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वन सच टेक्नोलॉजी विच इज इको फ्रेंडली इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. हम ऐसे ही डेली 10 एनवायरनमेंट टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.